جامعۃ الصالحہ کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعۃ الصالحات میں آج یوم آزادی کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ جشن یوم آزادی کے سلسلہ سے منعقدہ اس پروگرام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلعی صدر سمیت کئی دیگر عہدیداران و اہلکاران نے شمولیت کی۔ یہ سارا پروگرام جامعۃ الصالحہ کے چیئرمین لالا منظور احمد لون صاحب کی قیادت میں منعقد کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ پونچھ میں جامعۃ الصالحہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامعۃ الصالحات ایک ہاسٹل ہے جس میں غریب، یتیم، لاچار و نادار بچیاں زیر تعلیم ہیں، جنہیں دینی و دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ ان بچیوں کے رہنے سہنے، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے مکمل اخراجات ادارہ کے ذمے ہیں۔ جامعۃ الصالحہ کے چیئرمین لالا منظور احمد لون نے آج کے اس پروگرام میں کہا کہ وہ ضلع پونچھ کے ہر اس شخص کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس ادارہ کو قائم کرنے اور اسے آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دیا۔ جشن یوم آزادی کے سلسلہ میں منعقدہ اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانوں نے لالا منظور صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی تمام تر سپورٹ اس ادارہ کو دینے کی حامی بھری اور ادارہ میں پہنچ کر بچیوں کی کارکردگی دیکھ کر مہمان کافی خوش بھی ہوئے۔ اس پروگرام میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام مذاہب کے لوگوں نے شمولیت کی اور لالا منظور احمد لون کو مبارکباد پیش کی۔ ادارہ کے منتظمین جن میں حافظ خلیل احمد برکاتی صاحب بھی شامل ہیں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ ادارہ کا دامے درمے قدمے سخنے امداد کرتے رہیں، کیونکہ اس ادارہ میں بے شمار اخراجات ہیں جو اہل ثروت حضرات کی امداد کے بغیر پورے ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ادارہ کی تیسری منزل کا لنٹر بھی ڈالا جائے گا اور مزید ادارہ کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبہ جات کو بڑھائے جانے کے منصوبہ جات بھی بنائے جا رہے ہیں۔ جامعۃ الصالحہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہے جامعۃ الصالحات ہاسٹل کی بچیوں کی جانب سے جشن یوم آزادی کے سلسلہ سے منعقدہ تقریب پر دیکھیے جے کے ٹیلی ویژن کی یہ مفصل اور ایکسکلوزیو رپورٹ۔ ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے۔ تو میرا کرما، تو میرا دھرما، تو میرا ابھیمان ہے اے وطن محبوب میرے، تجھے پہ دل قربان ہے اے وطن محبوب میرے، تجھے پہ دل قربان ہے۔ ہم جئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے۔ آج اس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس قائد اعظم جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، چندر شیکھر آزاد اور بہت سے نوجوانوں کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قومی تہوار ہے جو ہر انسان بغیر کسی مذہب و ملت مناتا ہے۔ آزادی اس قیامت کی قدر ایک غلام ہی جانتا ہے کہ زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار چمن تو سلامت رہے۔
प्यारों कहीं घर से साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शाद माँ, रब के प्यारों कहीं घर से साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शाद माँ। ऐ बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। Independence Day on 15 August. Many best wishes and congratulations you all of for this Independence Day. We completed 77 years of independence. In Hindi we call it Azadi Ka Amrit Mahotsav. We should always proud to be an Indian. We should never forget the sacrifice of all the freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. Independence Day is a perfect opportunity to learn more about it. Let's not forget the independence of unity and love for our country, just like the colors of our flag. We all come from different backgrounds, but together we make a strong and beautiful nation. लाला मंजूर साहब जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, इन्होंने लगभग अरसा दराज से फारूक अब्दुल्ला के टाइम में इस स्टार होटल को तामीर किया और उसकी संग बुनियाद रखवाई। उस दौर में यहाँ पर जो है जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी किस्म की कोई जरूरत पड़ती थी तो उस वक़्त यहाँ पर जो कमरे वगैरह जो हैं लाला मंजूर साहब अपनी खुश असलूबी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तावन करके यहाँ के जो मसाइल होते थे, यहाँ पर जो राइश का इंतजाम होता था, अपना होटल जो है वो दिल से खोल देते थे। जो मस्जिद है औलिया मस्जिद, उसकी संग बुनियाद रखी, क्योंकि हर मजहब में जो इंसान अपने मजहब में मुकम्मल है वो दूसरे की मजहब को कदर कर सकता है, वो लोगों को अच्छी लाइन पर चला सकता है। इन्होंने औलिया मस्जिद को यहाँ पर तामीर करवाया, जिसमें यहाँ के हाजी साहब हैं, यहाँ के महल्ले के हजरात हैं, यहाँ महल्ले के बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इसमें तावन किया। और लाला मंजूर साहब के जो बेटे हैं दोनों, तजमल हुसैन लोन साहब और वसीम लोन साहब और इनकी अहलिया, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी जो है इसमें डोनेशन करके और महल्ले के लोगों ने यहाँ पर डोनेशन करके इस मस्जिद को तामीर किया, जो कि इस वक्त पुलिस में एक शान की मस्जिद जो है गिनी जाती है। इसके साथ साथ हमारे लाला जी ने यहाँ पर एक ऐसा स्कूल खोला कि दीनी तालीम के साथ साथ मरवजा तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पर जो ये स्कूल यहाँ पर खोला, जिसमें 1000 से 1200 तक बच्चे जो हैं, लाला जी ने यहाँ पर स्कूल खोला ताकि जिला के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर बच्चे बिला लिहाज मजहब मिल्लत आकर यहाँ पर वो तालीम हासिल कर सकें। मैं चौथी या पांचवी बार यहाँ पर आया हूँ और मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि लाला मंजूर जी ने बड़ी मेहनत करके जो हमारी बच्चियों हैं इसके लिए जो मदरसा या हॉस्टल बनाकर रखा है। कि लाला जी के साथ मेरा एक बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। 10-15 साल हम इकट्ठे रहे हैं, हम काउंसलर भी इकट्ठे रहे, हमने हर काम मिलकर किया है। लाला जी की शराफत के अभी ये कह रहे थे कुछ लाला जी के बारे में, मैं तो इतना कहूँगा कि वो सीधे आदमी है और सीधी लाइन पर चलने वाले हैं। हाफिज साहब के साथ ही मेरा मिलना हुआ यहाँ पर, बड़ी बार हम यहाँ पर आए। हाफिज साहब ने जो बच्चों को एक लाइन दी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देख रहा था छोटी छोटी बच्चियाँ 1 घंटे से तिरंगा झंडा लेकर खड़ी थी और उनको चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उनके मन के अंदर एक खुशी थी कि वो तिरंगा झंडा लेकर खड़ी थी। लाला जी को भी बड़ी मुबारकबाद देना चाहिए जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमें बुलाकर, मैं समझता हूँ कि हमें सम्मानित किया है कि इन बच्चियों को देकर, इनका जो इनकी एजुकेशन को देकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से मिलता है। सभी देशवासियों को और खास करके हमारे यहाँ लाला मंजूर साहब जी, जिनका ये मदरसा है, ये बेटियों की कितनी रक्षा करते हैं और कितनी तालीम देते हैं बच्चों को। हमें ये देख के हर्षोल्लास होता है कि हमारे पूंछ में इतने नन्हे नन्हे फूल खिले हैं। तो ये तो बड़ी बधाई की बात है। बहुत लाला साहब जी, आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने नन्हे मुन्ने फूल जो
हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। ये हमारा जो गुलदस्ता है पुंछ का, ये हम यही आशा करते हैं कि हमारा गुलदस्ता इसी तरह बना रहे। पुंछ में जो होनहार हमारे बच्चे, जैसे कि 9 तारीख से लेकर आज तक जो तिरंगे की रैलियां निकाली जाती थी जगह जगह से, हर स्कूल से, हर बच्चों के मन में यही है कि तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है। जब लाला मंजूर साहब ने इस काम का आगाज़ किया तो उन्होंने कोशिश की कि हमें भी इस काबिल समझा और हमारे साथ भी मशवरा करने की कोशिश की, और हमने इस दिल से इसमें अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो अगर ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि हर एक आदमी चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अल्लाह ताला उसी को नवाजता है, क्या पता किसका हिस्सा डालना चाहता है। इन्होंने कोशिश की, जब भी ये मुझे किसी बात में इधर बुलाते रहे तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि मैंने भी इनको अपनी तरफ से अच्छे अच्छी कोई सजाव दे के और उसमें इनकी बाजू कंधे के साथ कंधा मिला के इस चीज़ को बड़ा मतलब कामयाब बनाने की कोशिश की जाए। तो हमने कोशिश की है, और साथ में सबसे बड़ी बात है, हम स्पीच में तो कह देते हैं कि हमने तो पहले घर से हमने मजबूत होना है। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हम अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं, उनको खाने में देते हैं, उनके पहनने में देते हैं, तो ये बच्चियां हैं, तो इनको अगर हम इस तरीके से हम इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाएंगे, अगर इनको हम अडॉप्ट करते हैं, इनकी अगर परेशानियों को देखते हैं, इनकी ज़रूरतों को देखते हैं, अगर उनको हम समझ के अगर हम कोशिश करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आके सभी ने देखा कि इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के हाथ में ये यूम आज़ादी के दिन तिरंगा झंडा लगाया हुआ बड़ी देर से ये इंतज़ार कर रही हैं। इस बात की आपको मुबारक हो। जो लोग दीन नहीं जानते, इस्लाम नहीं जानते, कोई भी मज़हब बुरी बात नहीं सिखाता। जो इस्लाम नहीं जानते वो मदरसे और मस्जिदों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते और उससे हमारे माशरे में बुराई फैलती है। इंसान तभी बनता है जब वो अपनी तालीम हासिल करता है। अल्लाह ने मोहतरम मंजूर साहब को चुना, इन्होंने ये जगह 10 मरले वक्त की, उसके बाद इन्होंने ये पहला पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट बनाया, फिर ऊपर बनाया। उसके बाद मैं उन लोगों को आज की इस खुशी के मौके पे समीमे कल्ब से दुआ देता हूँ जिन लोगों ने रात दिन करके इस इदारे में नकदी जिनसी ताउन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा रोजे रोशन की तरह आया है। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये सारे मोहल्ले के हजरात बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा योगदान है। बरादरी मोहतरम अलहाज बाबू रफीक चिश्ती साहब, उसके बाद साहिल अहमद मीर साहब, ख्वाजा ठेकेदार शहजाद अहमद खान साहब, रिंकू दीवान साहब, उसके बाद काफी सारे हजरात हैं जिन्होंने इस इदारे को परवान चढ़ाने में कोई कमी नहीं बख्शी है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जैसे हमारे ये गैर मुस्लिम भाई हैं, आप ये पहले भी इस इदारे के अंदर आए, आज भी आए, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। जहां तक इस वतन अजीज की कुर्बानी की बात है, इस वतन अजीज को परवान चढ़ाने की बात है, बगैर रंग व नस्ल, बगैर मजहब व मिल्लत, इस वतन अजीज को हर जांबाजों ने बगैर तफरकाबाजी के परवान चढ़ाया। उसमें आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लामा फजल हक खैराबादी और डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इसी तरीके से कई सारे ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सूली के तख्तों पर लटकाकर अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया। उसके बाद आज और हम और आप ये जो सुकून की नींद ले रहे हैं, राहत की नींद ले रहे हैं, ये हमारे बॉर्डरों पर हमारे जो वीर जवान सैनिक जो है रात दिन खड़े होकर जो है अपनी मतलब नींदों को जलाकर मुल्क हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको भी आज के दिन से हम सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबका देश, सबका साथ, सबका विकास, मेरे कहने का मकसद ये, इस टाइम हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मीडिया वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए, ये पुरुष जो है ये गुलदस्ता है, इसमें हर कम्युनिटी का आदमी, हर मजहब का आदमी, हर जात का आदमी है। यहाँ पर कोई किसी के साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कर्म नहीं है, हमारे बुजुर्गों का कर्म है जिन्होंने इस रास्ते पे हमें आया, इस रास्ते पे चलाया
اس راستے پہ دکھایا. آج ہم آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں، مگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں پر یہ پارٹی کے قدور حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ وقتاً فوقتاً اس ادارے کے اندر تشریف لائیں، دیکھیں، آئیں. اور جو ہمارے یہاں پر برادر محترم لالا منظور احمد لون صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں جو ہے بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ یہ جو بزرگ بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کار خیر کا اجر عطا فرمائے. یہ جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں آپ کے استقبال کے لیے، ہمارے استقبال کیے، جس مقصد کے لیے گھر سے ان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع عطا فرمائے. ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا سارے یہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا سارے یہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا سارے یہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا سارے یہاں سے اچھا. اس سے پہلے میں نے اور سنیل گپتا جی نے 3-4 پروگرام پہلے بھی ہم نے یہاں پر اٹینڈ کیے. دیکھیے یہ ننھی منی بچیاں جو ہے یتیم بچیاں، میں وہاں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا. ہم سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ان بچیوں نے ترنگا ہاتھ میں لے کر کے یہاں پر ایسے بازو رکھی ہوئی تھی. تو میں نے لالا منظور سینسی کو کہا کہ دیکھو بچیاں تھک جائیں گی، ان کو بٹھاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں تھکیں گی. پونچھ ایک طرح کا جو ہے گلدستہ، ہر ایک پھول اس گلدستہ میں. آج 15 اگست کے اس شبھ اپلکش پر ہم یہاں مدرسے میں آئے تو ہماری ننھی منی بچیاں، ان کو دیکھ کر کے اتنا من پرسن ہوا. دیش کے پریے پردھان منتری جی نے ایک نعرہ دیا تھا کہ غریب کو آگے لانا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنا ٹیلنٹ میں نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں ہماری بہنیں انگلش میں انہوں نے سپیچ کی، اور بچیوں کے اندر جو اگر ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو جو ہماری بچیاں ان کے آگے پڑھ رہی ہیں ان میں کتنا ہوگا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غریب آگے آئے گا. یہاں کی جو گریٹ پرسنالٹی ہے اس محلے کی، لالا منظور حسین لون صاحب اور ان کے والدین صاحب کو ہم پوری عمر جو ہے اکٹھے رہے ہیں. غریب کیسے آگے آئے گا؟ آپ دیکھنا یہی بچیاں جو ہیں ایک دن KS اور IS بن کر کے آپ کے سامنے آئیں گی اور ہمارے اسی پنچ کا جو ہے بھلا کریں گی، پورے دیش کا بھلا کریں گی. گزار ہوں کہ یہاں پہ آپ سب لوگوں نے جو آج جو ٹائم نکالا ہے، یہ آج انہوں نے میرے بھائی تحصیلدار صاحب نے، حافظ صاحب نے، بچیوں نے میری حوصلہ افزائی کی. میں اس قابل نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں، میرا کوئی اتنا وجود نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھے بڑھایا چڑھایا، کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں. آپ ہیں تو میں ہوں، آپ کی عزت ہے تو میری عزت ہے، کیونکہ چاہے میرے بزرگ ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، میرے سب سے پہلے یہ میرے محلے والے ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے تائی ہیں، میرے چاچے ہیں، میری فیملی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے، پھر اس کے بعد میرا محلہ ہے، پھر اس کے بعد میرا شہر ہے، میری اسٹیٹ ہے، میرا ملک ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے تئیں وفادار رہنا چاہیے. تو میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ میں اپنی فیملی ہو، چاہے جموں میں ہو، یہاں پہ ہو، تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جو ہیں غلط نہیں ہو سکتے، سب ہندو غلط نہیں ہو سکتے، سب سردار بھائی غلط نہیں ہو سکتے، ہم سب ایک ہیں. اور ہمارا جو ترنگے کا جیسے رنگ ہے ایسے ہماری جماعت ہے. ہم جتنے بھی مذہب ہے سب مل کے جو ہے ایک ہی اس میں چلتے ہیں، ایک ہی راہ میں چلتے ہیں.
तो मैं चिश्ती साहब आपको बताऊं कि ये आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों का बड़ापन है कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने सबसे, मैं जब भी अपनी फैमिली में कहीं बैठता हूँ कि जब सबसे इस महल्ले में इस इलाके में ढूंढा जाए कोई नलायक तो वो मैं था, कमजोर मैं था, हर चीज़ में मैं था। क्यों अल्लाह ताला ने ये थोड़ा सा मुझे की रास्ता दिया है आगे निकलने का, ये आप बुजुर्गों की दुआएं हैं, रिश्तेदारों की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं ये अपने आप को ये जो इन्होंने कहा मुझे थोड़ा वो हुआ, चलो इन्होंने इतना बड़ा किया तो इतना कुछ भी नहीं है। बाकी ये यहाँ पे हमारे हाफिज साहब हैं, यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, यहाँ हमारे टीचर हैं, मैं खुशूसी तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हर वक्त बिना तनख्वाह लिए भी यहाँ पे, मैं बताऊँ चिश्ती साहब, दोस्ता साहब, यहाँ पे ऐसे भी है हमारे पास कि बिना तनख्वाह के काम करते हैं। चिश्ती साहब यहाँ पे हमारे 4-5 मुलाजिम ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं लेते हैं। गया प्याज कौन छोड़ के गया, चावल कौन छोड़ के गया, मौलवी साहब को फोन करते हैं, मुझे नहीं पता, मौलवी साहब के साथ रब्ता करते हैं, सब लोग यहाँ पे सब कुछ सामान भेज देते हैं मौलवी साहब के। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा महीने का 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, तो सब ये लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। अब जब सोहेल साहब है अपने यहाँ पे हमें AC लगाने थे, इन्होंने अपनी टीम तैयार की, AC लगवा दी। अब यहाँ पे हमें बेड लगवाने थे अपने, तो दूसरे अपने मीर साहब हैं शौकी जी, उन्होंने आके बेड लगवा दे। जहांगीर मीर साहब उठे, उन्होंने कुछ का आके हमारे साथ, जो आप जैसी टीम है, आप जैसे भाई हैं, तो वो आके यहाँ पे मुझे कभी मायूस नहीं होने देते हैं। मौलवी साहब को फोन करते हैं, बोलते हैं लाला जी को मत बताना यार हमने कुछ किया। कोई अगर 10,000 रुपये भी देता है, 20 भी देता है, वो नहीं बोलता है जनाब मैंने 5 तोड़े चावल भेजे, कोई आलू भेजता है, कोई प्याज भेजता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा कमाल है, ये आप सब लोगों का कमाल है। तो चलो मुझे ये खुशी है कि ये इतने बड़े काम के लिए अगर अल्लाह ताला ने मुझे इन बच्चियों के लिए चुना है, तो मैं यही उम्मीद है कि मैं खुद, मेरे वालिद साहब ये बैठे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मेरा सपना था, तो मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी एजुकेशन दूँ। उसके वजह से चलो यहाँ पे स्कूल चला, मदरसा चला, जम्मू में एक लाइब्रेरी जो 150 बच्चे वहाँ KS-IS कर रहे हैं, तो वो मेरा कमाल नहीं है। ये ऊपर वाला कैसे, मैंने कहा ना सबसे नालायक आदमी जो है पुंछ में पहला बंदा मैं था, तो सबसे कमजोर भी था, तो ये ऊपर वाले ने काम दिया, ये आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो चिश्ती साहब आप धूप भी आपको बहुत लगी, गुप्ता साहब माजूद चाहता हूँ, प्रेसिडेंट साहब, तो यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं आज आपको तकलीफ लगी, इसकी माजूद, क्योंकि ये जो वक्त आपने दिया ये इन बच्चियों के लिए दिया। शायद अगर मेरे बेटे की शादी होती है, बारात होती, आप नहीं रुकते, शायद लाले का भी कोई प्रोग्राम होता, आप नहीं रुकते। ये आपकी मजबूरी है। ये जो आप मस्किन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपकी बेटियां दिख रही हैं, जो प्यार आज आपने धूप में दिखाया, यहाँ पता चल गया कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या आज आपने वादा करना है कि भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दावे को जो है हमेशा जो है आप साथ रहेंगे, और ये आपका दादा है, मैं आपका खादम बन के जैसे आप रास्ता बताओगे, देखो यहाँ पे सब बैठे हैं, जैसे आप रास्ता बताओगे, मैं कभी किसी के आगे बढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जहाँ पे भी खिदमत की है पीछे रह के खिदमत की, आगे तो हमेशा पीछे रहने की कोशिश की है। जहाँ पे मैं हर जगह गुस्सा साहब के साथ खड़ा होता हूँ, देखता हूँ गुस्सा साहब आ गए, चिश्ती साहब आ गए, फिर मैं खड़ा जाता, ऐसे जब मैं देखता आगे कोई नहीं पीछे से भाग जाऊंगा, इसलिए आप लोग